A very good afternoon, all of you. Myself, Dr. Chandrasekhar Yadav, Faculty of Education, BA Department, IMT College of Science and Technology. Today, I will discuss about Right to Education Act 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। आर्टिकल 45 में इस चीज का वर्णन किया गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मुहैया कराई जाएगी। देयर इज ए लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड राइट टू एजुकेशन एक्ट। इन द बिगिनिंग, इन आर्टिकल 45 of the Constitution of India, it was stated, the state shall endeavor to provide within a period of 10 years from the commencement of this Constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years. Ever since the state made effort to provide compulsory and free education for children up to the age of 14 years. Later, a new Article 21A was added by the 86th Constitutional Amendment in 2002, which is a follow. The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may by law determine. By the same 86th Constitutional Amendment, a new fundamental duty 51K was added under the Part 4A under fundamental duties, which is as follows. Parent or guardian has to provide opportunity for children to his child or ward between the age of 6 to 14 years. Later in 2009, the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 was passed. In brief, this is called the Right to Education Act or RTE. According to this act, all children in the 6 to 14 years age group have the fundamental right to get free education. The government has enforced this law from 1st April 2010. The main factors of this act are as follow. इस एक्ट को एक कानून के रूप में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। शॉर्ट टाइटल, द शॉर्ट नेम ऑफ द एक्ट इज द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एजुकेशन एक्ट 2009। इसको संक्षेप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। एवरी चाइल्ड of the age of 6 to 14 years shall have a right to free and compulsory education in a neighborhood school till completion of elementary education. कोई भी छात्र जिसकी आयु 6 वर्ष है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में अपने किसी पड़ोस के विद्यालय में, अपने आसपास के विद्यालय में वो शिक्षा ले सकता है। फ्री एंड कंपल्सरी है, उससे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस चीज का प्रावधान किया गया था। स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन नॉट एडमिटेड टू आर हु हैव नॉट कंप्लीटेड एलिमेंट्री एजुकेशन इन केस ए चाइल्ड अबव 6 years of age has not been admitted in any school or through admitted could not complete his or her elementary education, then he or she shall be admitted in a class appropriate to his or her age. Next one is right of transfer to other school, where in a school there is no provision for completion of elementary education or a child wishes to go to any other school due to any reason, then he will have a right to seek transfer to any other school. अगर किसी छात्र
को दूसरे विद्यालय में जाना है या उसके अभिभावक का कहीं ट्रांसफर हो गया है तो उसका वहां पर दाखिला हो जाएगा। ऐसा नहीं कि दूसरा विद्यालय, दूसरा स्कूल उस छात्र का प्रवेश नहीं लेगा या प्रवेश से मना करेगा। आर्टिकल 45 में या शिक्षा के अधिकार अधिनियम में इस चीज का वर्णन किया गया है। ड्यूटी ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज टू एस्टेब्लिश स्कूल within 3 years of this act coming into force, the state government and local authorities will have to establish neighborhood school where such school don't exist. कोई भी विद्यालय, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो या वहां की लोकल अथॉरिटीज हो, इसको लागू होने से 3 वर्ष के अंतर्गत जो उसके नॉर्म है उसको पूरा करना होगा। नेक्स्ट वन इज शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिपेयर एन एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इन enforcing this act and would make available necessary technological assistance and resources to state government. केंद्र सरकार या भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट को जो भी रिसोर्सेज है, जो भी टेक्नोलॉजी है या जो भी उसके लिए सहायक सामग्री है वो मुहैया कराएगी। इस चीज का उसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट वन इज ड्यूटीज ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। The state government will ensure admission and attendance of each child in the age group of 6 to 14 years. They will also ensure that no discrimination is exercised against children belonging to weak and deprived classes. They will ensure availability of school building, teacher aids, and basic structure, and will make available quality education to children and training to teachers. इसके लिए छात्रों के लिए विद्यालय की व्यवस्था है कि नहीं, इसका उल्लेख किया गया है। टीचर ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था है कि नहीं, इसके विषय में बताया गया है। नेक्स्ट वन इज ड्यूटीज ऑफ लोकल अथॉरिटीज। द लोकल अथॉरिटी विल मेंटेन record of children as mentioned in the above. In addition to the state government, they will maintain record of children in their area and will ensure the working of school and also prepare academic calendar. Next one is duties of parent and guardian. Each guardian will be responsible to admit his child ward in the age group of 6 to 14 years in school. सभी अभिभावकों का, सभी गार्जियंस का यह उत्तरदायित्व है, यह जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को जिनकी आयु, जिनकी उम्र 6 वर्ष है उनको विद्यालय भेजे, जिससे कि वो लिटरेट हो सके, जिससे कि वो शिक्षित हो सके। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें इस चीज का उल्लेख किया गया है। ऐसा नहीं केवल सरकार की जिम्मेदारी है, केवल गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है, उसके लिए सभी पेरेंट्स, सभी अभिभावकों की उतनी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार स्कीम ला सकती है, सरकार रिसोर्सेज मुहैया करा सकती है, सरकार फ्री में शिक्षा दे सकती है, लेकिन पढ़ने वाला विद्यालय तक तो जाए। उसके लिए अभिभावकों को, उसके लिए पेरेंट को जागरूक होना होगा, जिससे कि वे अपने बच्चों को, वे अपने स्टूडेंट को विद्यालय भेज सके, जिससे वो शिक्षा पा सके। नेक्स्ट वन इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर फ्री स्कूल एजुकेशन। द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज विल मेक necessary provision for children above 3 years of age for preschool education and child care and education facilities for children for birth to 6 years of age. Next one is extent of school responsibility for free and compulsory education. The government school will provide free education. In addition, the private and special class school too will have to reserve 25% of seats
for children belonging to economically weaker classes. जो सरकारी विद्यालय है, गवर्नमेंट विद्यालय है, उसमें तो व्यवस्था है ही कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा दी जाए। लेकिन जो प्राइवेट विद्यालय है उसमें भी 25% सीटें उन बच्चों के लिए रखी गई है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक रूप से वो कमजोर हैं, वीकर सेक्शन से आते हैं, उन बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट वन इज नो कैपिटेशन फ्री एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन। नो स्कूल विल चार्ज एनी डोनेशन और कैपिटेशन फी और एडॉप्ट एनी स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ ए गार्जियन और चाइल्ड। इस चीज का भी जिक्र किया गया है कि बच्चों के एडमिशन के समय किसी भी प्रकार का चंदा, किसी भी प्रकार का शुल्क, किसी भी प्रकार का डोनेशन छात्रों से या अभिभावकों से विद्यालय नहीं लेगा, क्योंकि इस चीज का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट वन इज प्रूफ ऑफ एज फॉर एडमिशन। नो चाइल्ड कैन बी रिफ्यूज्ड एडमिशन इन द एब्सेंस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। किसी भी छात्र का अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके अभाव में उसको एडमिशन से वंचित नहीं किया जा सकता, उसके दाखिलों को नहीं रोका जा सकता। इस चीज का भी प्रावधान किया गया था। सरकार का मेन मोटो था कि सभी लोग लिटरेट हो, आगे बढ़े, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट है या एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा सबके लिए, सर्व शिक्षा अभियान में भी इस चीज का जिक्र किया गया है कि कैसे अधिक से अधिक लोगों को साक्षर किया जाए, शिक्षित किया जाए, जिससे एक तरीके से लोगों में अवेयरनेस आए। नेक्स्ट वन इज नो डिनाइल ऑफ एडमिशन। नो चाइल्ड विल बी डिनाइड एडमिशन इवन आफ्टर द डेट ऑफ एडमिशन हैज पास्ड। इस चीज का भी इसमें उल्लेख किया गया है, अगर एडमिशन की जो तारीख है, प्रवेश की जो तिथि है, अगर बीत गई है, उसके बाद कोई छात्र प्रवेश के लिए विद्यालय में आता है या कोई पेरेंट अपने बच्चों को लेके आते हैं, तो कोई विद्यालय यह कहकर मना नहीं कर सकता है कि एडमिशन की डेट निकल चुकी है, आपका प्रवेश नहीं होगा। इस चीज के लिए सख्त आदेश था कि डेट बीतने के बाद भी, तारीख के बाद भी अगर कोई भी छात्र प्रवेश के लिए आता है तो उसको प्रवेश दिया जाए, उसको दाखिला दिया जाए, क्योंकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में ये सारी पॉइंटें थी जिससे कि लोगों को अपने शिक्षा के अधिकार को विषय में पता लगे। प्रोविजन ऑफ होल्डिंग बैक एंड एक्सपेंशन। नो चाइल्ड विल बी हेल्ड बैक इन द क्लास नॉर विल बी एक्सप्लेन्ड। इसमें किसी भी छात्र को कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता, उसको फेल नहीं किया जा सकता कि कुछ भी कह के बच्चों को उस क्लास में रोका जाए। सरकार ने इस तरीके से प्रावधान किया था कि किसी बच्चों को उसी कक्षा में उसको रोकना नहीं है। प्रोविजन ऑफ फिजिकली पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट टू चाइल्ड। किसी भी छात्र को शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से दंडित नहीं किया जा सकता। नो चाइल्ड विल बी गिवन एनी फिजिकल और मेंटल पनिशमेंट। किसी भी छात्र को शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता, इस चीज का भी जिक्र किया गया है। नेक्स्ट वन इज नो स्कूल टू बी एस्टेब्लिश्ड विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन। कोई भी विद्यालय बिना रिकॉग्नाइज या बिना मान्यता के नहीं चल सकता, इस चीज का भी उल्लेख किया गया है। नो स्कूल विल बी रन without recognition and only those schools will be recognized which fulfill the condition maintained in Article 19। जो पूरी कंडीशन, जो भी शर्तें हैं सरकार की, उसको जो स्कूल फुलफिल करता है वही विद्यालय, वही स्कूल केवल इसको मतलब पूरी तरीके से एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि आप उसकी शर्तों को नहीं मानते हैं, उसकी कंडीशन को नहीं मानते हैं, रिकॉग्निशन नहीं है, उसके भी बाद आप चला रहे हैं, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया। नेक्स्ट वन इज नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर स्कूल। कुछ मानक निर्धारित किए गए थे
कि विद्यालय के लिए या स्कूल के लिए क्या ऐसा हो। द स्कूल which had been established before the act came into force and did not fulfill the specified norms, they will have fulfilled the norms within 3 years of the act coming into force. इस एक्ट को लागू होने के बाद जब 2009 में आया, 2010 से कानून के रूप में लागू हुआ, 3 वर्ष के अंतर्गत जो भी फुलफिल कंडीशन है, जो भी इसके एक स्टैंडर्ड है या इसका एक मानक है, उसको विद्यालयों को पूरा करना होगा अगर चलाना है तो। अगर 3 वर्ष के अंतर्गत इस स्टैंडर्ड को, इस मानक को, उनकी कंडीशन को अगर विद्यालय नहीं पूरा करता है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, एक तरीके से वो विद्यालय चला नहीं पाएगा। इस चीज का भी प्रावधान किया गया। नेक्स्ट वन इज power to amend schedule. The central government by an ordinance will enjoy the power to add, omit or amend any norm in the schedule. Next one is school management committee. इस चीज का भी वर्णन किया गया। जो भी विद्यालय होगा उसके लिए एक प्रबंध समिति, एक कमेटी का गठन किया जाएगा। एक्सेप्ट द प्राइवेट स्कूल नॉट गेटिंग एड, ऑल अदर स्कूल विल constitute a management committee which will comprise of pupils, representative, guardians and teacher. This committee will monitor the working and such other function. जिस कमेटी का जिसका यह गठन किया जाएगा, एक तरीके से वो मॉनिटरिंग का काम करेंगी कि जो वर्क हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, क्या वो सही दिशा में हो रहा है, सही तरीके से फंक्शन किया जा रहा है, विद्यालय की कंडीशन क्या है, बच्चों के पढ़ने की व्यवस्थाएं क्या है, टीचर की स्थिति क्या है, क्या ट्रेन टीचर है, जो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उस कंडीशन को, उस नॉर्म को क्या टीचर पूरा कर पा रहे हैं। क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके लिए अपना डिसीजन लेना पड़ता है और इन सारी चीजों को मॉनिटरिंग करना होता है। एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास होती है पेरेंट और टीचर के बीच, टीचर और स्टूडेंट के बीच, सारी चीजों के बीच में आपस में तालमेल बना के चलना होता है। नेक्स्ट वन इज स्कूल डेवलपमेंट प्लान। द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी as mentioned above will work to make plan for any school development and to make recommendation for it. Next one is qualification for appointment and term and condition of service of teacher. जिन शिक्षक का, जिन टीचर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, क्या उनकी योग्यताएं फुलफिल है, जो एक मिनिमम क्राइटेरिया है उसको पूरा करते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स। भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एक मिनिमम क्राइटेरिया का निर्धारण जो भी किया है उस मानक को पूरा कर रहे कि नहीं, उसको ध्यान में रखते हुए ही टीचर का चयन किया जाएगा, टीचर का सिलेक्शन किया जाएगा। क्योंकि जब तक क्वालिफाइड ट्रेंड टीचर नहीं होंगे तब तक बच्चों का सही मार्गदर्शन, सही दिशा निर्देश सही तरीके से उनको नहीं ले जा सकते। इसलिए ये सब इस चीज का निर्धारण किया गया था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वांटिटी तो बढ़ाइए लेकिन क्वालिटी का ध्यान रखते हुए गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आना चाहिए। गुणवत्ता परक शिक्षा दी जाए जिससे कि आगे चलकर वो बच्चे कहीं जहां भी जाएं, जिस क्षेत्र में भी जाएं, तो उनको लगे कि हमने कहीं भी किसी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। नेक्स्ट वन इज ड्यूटीज ऑफ टीचर्स एंड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। द टीचर विल ड्यूटी बाउंड टू बी प्रेजेंट इन स्कूल at regular time, complete the curriculum
undertake additional teaching if need and organize guardian meeting. जो भी करिकुलम है, जो भी पाठ्यक्रम है, उसको ध्यान में रखते हुए टीचर तो डेली अपनी ड्यूटी देगा, पढ़ाएगा, लेकिन अगर किसी पेरेंट, किसी बच्चों की तरफ से आ रहा है कि नहीं, इसको एक्स्ट्रा क्लास को पढ़ाने की जरूरत है, एडिशनल टीचिंग की आवश्यकता है, तो उस चीज की भी जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, उस मीटिंग में उस पर भी उनकी बातों को भी माना जाएगा कि बच्चों के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है, एडिशनल क्लास की जरूरत है टीचिंग के, तो उसके लिए टीचर फुलफिल करें। नेक्स्ट वन इज पीपल टीचर रेशियो। शिक्षक और शिक्षार्थी, टीचर और स्टूडेंट का क्या अनुपात होना चाहिए? जब तक एक रेशियो नहीं होगा, क्योंकि एक लिमिट है कि एक टीचर इतने बच्चों को ही पढ़ा सकता है एक क्लास में। ऐसा नहीं कि किसी भी क्लास में 100-200 बच्चों को बैठा दिया जाए और टीचर उनको मॉनिटर कर पाएगा या पढ़ा पाएगा, क्योंकि जो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है सरकार की तरफ से, within 6 months of this act coming into force, the state government and local authorities will have to ensure that the pupil teacher ratio excluding the principal will not exceed 1:40. 1:40 मीन्स 40 बच्चों पर एक अध्यापक होने चाहिए। इसमें प्रिंसिपल को हटाकर प्रिंसिपल को एक्सक्लूड किया गया है, प्रिंसिपल को इसमें नहीं लिया गया है, इसको उनको एक्सक्लूड करते हुए। ऐसा नहीं, क्योंकि एक अध्यापक पर 40 अगर बच्चे हैं तो एक तरीके से उनको उन पर ध्यान देगा, उनका होमवर्क कराएगा, उनके टीचिंग ऑफ क्वालिटी पर भी फोकस कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज फिलिंग ऑफ वैकेंसी ऑफ टीचर्स। किसी भी विद्यालय में मान लीजिए 10 पोस्ट है, तो 10 पोस्ट में केवल 10% एक टीचर ही उसमें सीट खाली रह सकती है। ऐसा नहीं कि 10 की जगह है और उसमें 5 टीचर नहीं है। उसमें इस चीज का भी जिक्र किया गया है, द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज विल इंश्योर दैट द वैकेंट पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर्स विल नॉट एक्सीड 10% द टोटल अप्रूव्ड पोस्ट। मतलब 10% से ज्यादा जो पोस्ट टोटल अप्रूव्ड रखी गई है, उससे ज्यादा वैकेंट टीचर के लिए खाली रिक्त सीटें नहीं रख सकता। इस चीज का भी प्रावधान किया गया है, इसमें कहा गया है राइट टू एजुकेशन एक्ट में। नेक्स्ट वन इज प्रोविजन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एजुकेशनल पर्पज। टीचर विल नॉट बी डिप्लॉयड in any non-educational work other than population census and disaster relief. टीचर को ऐसा नहीं कि अनावश्यक किसी भी कार्य में लगाया जा सके, क्योंकि शिक्षक या टीचर का पद बहुत ही गरिमा का होता है और एक सम्मान का पद होता है। इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखा गया है कि उनको शिक्षण कार्य के अलावा, टीचिंग के अलावा केवल जनगणना के कार्यों में और डिजास्टर रिलीफ में, कभी कोई आपदाएं आती है देश के ऊपर, राज्य के ऊपर, तो ऐसे मुसीबत में केवल उनको लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी किसी भी कामों में उनको टीचर को लगा दिया जाए। इस चीज का भी प्रोविजन किया गया है, इस चीज का भी उसमें जिक्र किया गया है कि जो नॉन एजुकेशनल पर्पज के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें केवल है सेंसस मीन्स जनगणना का कार्य और डिजास्टर रिलीफ। कभी आपदा आती है, ऐसे टाइम में लोगों के हेल्प करने के लिए 2 कार्यों के लिए ही केवल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज प्रोविजन ऑफ प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर। इस चीज का भी उल्लेख किया गया है कि कोई भी टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता जो विद्यालय में पढ़ा रहा है। टीचर विल एंगेज हिमसेल्फ हरसेल्फ इन प्राइवेट ट्यूशन और प्राइवेट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वन इज करिकुलम एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन दोनों के लिए क्या प्रावधान किया गया है कि द एकेडमिक अथॉरिटीज as specified by the appropriate government will determine these as per the values inherent
in the Constitution and will pay attention to the all-around development of a child while working for freeing him from any fear, trouble for anxiety. Evaluation will be broad and continuous. ऐसा नहीं कि बच्चों को डराकर, ऐसी शिक्षा देना है कि जिससे बच्चों का ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो, बच्चों का चौमुखी विकास हो, उसका सर्वांगीण विकास हो, चाहे हम शारीरिक की बात करें, फिजिकल, मेंटल, कैरेक्टर, स्पिरिचुअल, मोरल, ये सारे विकास होना चाहिए। क्योंकि शारीरिक विकास तो होगा, साथ में मानसिक विकास भी होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। इस सारी चीजों पर ऑल अराउंड डेवलपमेंट की बात कही गई। नेक्स्ट वन इज एग्जामिनेशन एंड completion certificate. No child will have to appear in any board examination before completion of his her elementary education. कोई भी छात्र को किसी भी बोर्ड एग्जाम में तभी सम्मिलित किया जाएगा जब तक वो 6 to 14 years तक की शिक्षा को पूरी नहीं करेगा, उसके बाद ही उसको उसमें दिया जाएगा। Each child completing elementary education will be given a completion certificate. जब छात्र एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा कर लेगा तभी भी उसको कोई भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज मॉनिटरिंग ऑफ ए चाइल्ड राइट टू एजुकेशन. द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स as constituted under the provisions of the Commission for Protection of Child Right Act 2005 will review the right given under the Act and undertake its review. Next one is redressal or grievances. The Commission for Protection of Child Right, as mentioned above, will examine any complaint regarding a child right to free and compulsory education. Next one is Constitution of National Advisory Council. The proposed National Advisory Council will be constituted by the central government. Its function will include the advise the central government for effective implementation of provisions mentioned in the Act. Next one is Constitution of State Advisory Council. The state government will constitute state advisory councils whose function will include to advise the respective state governments regarding effective implementation of the provisions of the Act. Next one is power to issue direction. Under Article 35, the central government will have the power to issue guiding principles and direction to state government. The state government will have the power to issue guiding principles and direction to local authorities, and the local authorities will have power to issue guiding principle direction to the school management committee. वो दिखाया गया है कि किस दिशा में कार्य करेंगे मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और टीचर। एक हियरार्की बनाई गई है जो आर्टिकल 35 में जिसका जिक्र किया गया है, इसको ध्यान में रख के ही कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज प्रीवियस सेक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन नॉन एविडेंस with Articles 13, 18 and 19 of the Act. No prosecution will take place without the prior approval for the appropriate government or authorities. Next one is protection of action taken in good faith. No suit or other legal proceeding will lie against the government, commission, local authorities, school management committee or any other person associated with the act for any act done in good faith. Thank you so much.